Welcome, students, to this new chapter, the origin and evolution of life. If you ask me about this chapter, I consider this as the most important chapter in our entire syllabus from 11th to 12th because I truly believe in one of the quotations from a scientist. There is a scientist named Dobzhansky, and I am true believer of this concept of this quotation precisely. Dobzhansky. There's a scientist named Dobzhansky. This scientist says that nothing in biology makes sense. Nothing in biology makes sense except in the line of evolution. Except in the line of evolution. And I'm true believer of this fact. In biology, there is no sense if there is no concept of evolution. So, this is my experience or view about this topic. Evolution is not restricted. It is not just the fact कि इंसान जो है वो बंदरों से पैदा हुआ है. Not just, we should not limit our thinking. Whenever someone says evolution, so we begin our thinking that humans have arisen from monkeys. It's not just that. It's not just that little fact. That isn't even a little 0.00001% of this concept. This concept is very vast concept, and it applies to every aspect of the life. It applies to every aspect of every subject, everything. Our day-to-day life, it applies to everything. So evolution is present everywhere, and that's why I truly believe in this scientist who says that nothing in biology makes sense except in the line of evolution, and this scientist is Dobzhansky. Let me introduce this chapter, what we have to discuss. As you can see, there are two terms, origin and evolution. So we have to revolve our discussion around these two terms. One is this origin and second is this evolution. Origin means how something came into existence. How something came into existence. कोई चीज़ कैसे वजूद में आई, उसको हम कहते हैं origin. ठीक है, तो किसी चीज़ का वजूद कैसे आया, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं origin. एंड एवोल्यूशन जो है प्रिसाइजली इट मीन्स हाउ समथिंग चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. हाउ समथिंग चेंज्ड फ्रॉम one form to another. One form to another. एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दूसरा वाला ही है. तो कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज हुई उसको एवोल्यूशन कहते हैं, एंड कोई चीज़ पहले कैसे वजूद में आई उसको ओरिजिन कहते हैं. ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर में. हमें डिस्कस करना है कि क्या हमें डिस्कस करना है लाइफ जो है वो उसका ओरिजिन कैसे आया, और या क्या बोलते हैं जो लाइफ है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, पहली फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे आई वजूद में. ठीक है, और फिर वो पहली फॉर्म कैसे चेंज हुई इनटू वेरियस फॉर्म्स सच दैट हमारे पास ये बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो आज अवेलेबल है. जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ जो है आज हमारे पास अवेलेबल है, हाउ दे इवॉल्व. सो दो चीज़ें, लाइफ पहले आई कैसे इन द फर्स्ट प्लेस, एंड जो फिर वो पहली फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो फिर कैसे चेंज हुई, इवॉल्व हुई इनटू वेरियस species, so such that we have this enormous diversity of life on this earth. ठीक है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी, आज हमारे millions of species है. So they are thought to be have arisen from the single species, and how that single species got converted into so many types of species. This is what is called, we actually mean by evolution. ठीक है, and origin is just the beginning. ठीक है,
दोनों ही चीज़ें जो है ना, दीज आर इनके लिए ये एक्चुअली दीज आर what we call it, these are products of imagination, these are products of deep thinking. So people are doing deep thinking and imaginative thinking, and they are putting out the theories, the views, and those views are being cross checked, and then if there is no flaw, the views are accepted, and if there is flaw, the views are rejected. So that's all we will discuss in this chapter, because there is a lot of scope in this chapter, in this concept still left behind for the scientists to explore. Now, तो जैसे मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि एवोल्यूशन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है. सो यू शुड रियली पॉन्डर ओवर कि एवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, हमारी डे टू डे लाइफ में बोल रहा था मैं एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. सो रिमेंबर इन अबाउट 90s जो था, 90s से पहले, व्हेन समवन यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ, देयर इज अ पर्सन हेयर, देयर इज अ पर्सन हेयर, फॉर एग्जांपल this is one person, this is second person. So in before 90s, and they used to then when they had to communicate, अगर इनको आपस में communicate करना था तो इसको बराबर यहाँ तक जाना था चल के, ठीक है. नाउ देन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस आ गए, पोस्टमैन्स आ गए, ठीक है. फिर पोस्टमैन लेटर्स लेने लगे. फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास टेलीफोन्स आ गए. टेलीफोन्स, वायर्ड कम्युनिकेशन था, ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन था. उसके बाद टेलीफोन्स जो है वो कन्वर्ट हो गए मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है. तो मोबाइल फ़ोन्स फिर स्मार्टफोन्स में, ठीक है. तो स्मार्टफोन्स और इवॉल्व होते गए. आजकल यू हैव everything from the smartphone. So see how we evolved. First we had to go direct, then we got postman, then we upgraded telephones, then we upgraded to mobile phones, and then smartphones, ठीक है. This is how we evolved as a society, ठीक है. So nobody can remember कि हमें nobody can imagine going to you, if they had to communicate some person in US, and then they will find it practically impossible or useless to go to US and tell that person that this is the information you needed. So they we are so highly dependent, or we are so highly evolved now, that we think it was like this all this टाइम, ठीक है. ऐसे ही हमेशा से ही था, ठीक है. तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन, दिस इज़ द स्कोप ऑफ दिस कंसेप्ट. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है. तो लेट मी स्टिक टू द डिस्कशन. आई सेड कि देर आर टू टर्म्स, origin and second is the evolution. Origin means how something came into existence, and we have discussed this origin with respect to life. And evolution means how something changed from one form to another, and we have to discuss this concept also obviously with respect to life. So let's start origin of life. Before starting the origin of life, let me introduce you to some basic terms. These are some basic terms. So number one is this term cosmology. Cosmology is, as cosmos means universe, so cosmology is simply study of universe. These are first two terms that you have to remember. Then somebody can say, what is universe? Universe is simply cluster of galaxies. And if someone says what are galaxies, galaxies are combination of stars, clouds of gases, and dust. Along with stars, there can be also planets, which unfortunately isn't present here. Now, our galaxy is Milky Way galaxy. You know that is seen at night in the sky, and solar system is one of the systems in this Milky Way galaxy, which contains the sun and its 9 planets. And you should remember that this solar system evolved around 4.5 billion years ago, according to Big Bang theory, that we are going to study just now. ओके. सो बेसिक टर्म्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया बेसिक टर्म्स के साथ, ठीक है. तो आप ये बेसिक टर्म्स याद रख लो, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द लाइफ. वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ अकाउंट हम लेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है. पहले सेक्शन में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, origin of universe जो है ना, it is explained by a theory called Big Bang theory. Explained by a theory called Big Bang theory, ठीक है. एक थ्योरी
है हमारे पास, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। इसी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है व्हाट वी कॉल एज दिस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एंड ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी दिस वाज गिवन बाय एबी लैमेटियर, एबी लैमेटियर। एंड ये जो थ्योरी है इट स्टेट्स दैट, शॉर्ट में मैं आपको, क्योंकि हमें ये थ्योरी असल में यहाँ डिस्कस नहीं करनी है, शॉर्ट में आपको बोलूँगा ये थ्योरी बोलती क्या है। इट स्टेट्स दैट जो पूरा मास था, इट स्टेट्स दैट द एंटायर मास ऑफ यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स का एंटायर मास है, एंटायर मास ऑफ यूनिवर्स was initially concentrated, वो इनिशियली कंसंट्रेटेड था, जमा था इन ए सिंगल एंटिटी, एक ही जगह पे, एक ही छोटे से डॉट में वो जमा था, ठीक है, इन ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी। उस सिंगल एंटिटी को सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कहा सबसे पहले जो सारा एंटायर मास था यूनिवर्स का, ठीक है, वो पहले सारा कंसंट्रेटेड था एक सिंगल एंटिटी में, दैट्स कॉल्ड सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी को हम इन्फिनाइट मास, इसका हम कह सकते हैं इसका इन्फिनाइट मास था या इन्फिनाइट डेंसिटी थी। दिस वाज इन्फिनाइट मास एंटिटी और इन्फिनाइट डेंसिटी एंटिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मास और इन्फिनाइट डेंसिटी एंटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस सिंगुलैरिटी में एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। सो ए बिग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑकर्ड इन दिस दिस सिंगुलैरिटी, ठीक है। एंड उस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या हो गया, ये जो मास है ये एक्सपैंड हो गया, एंड इससे फिर क्या बन गए, इससे फिर गैलेक्सीज बन गए, ठीक है, जो आज मॉडर्न डे गैलेक्सीज है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, a thermonuclear explosion occurred in this singularity, about, it is estimated that it occurred about 20 billion years ago. Whenever I write BYA, you are going to understand it means billion years ago. Billion years ago. Billion means 10 raised power 9 10 raised power 9. So about 20 billion years ago a thermonuclear explosion occurred in this singularity, and what happened because of that, resulting in expansion of this mass, and because of that galaxies were formed, ठीक है। अब इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि ये हमारे सिलेबस का कोर पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा एक्सप्लेन जानना थे कुछ पॉइंट्स अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि पूछे मत जा सकते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो हम सब का आंसर रहेगा बिग बैंग थ्योरी। कोई पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो एबी लैमेटियर ने दी थी। एंड कोई बोलेगा कि बिग बैंग थ्योरी का क्रैक्स बताओ, शॉर्ट में बताओ ये बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है, ठीक है। सो दिस स्टेट्स दैट कि एंटायर जो मास था यूनिवर्स का वो पहले एक ही सिंगल एंटिटी में कंसंट्रेटेड था, दैट सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी, जिसको हम इन्फिनाइट मास या इन्फिनाइट डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसी सिंगल एंटिटी में क्या हुआ, एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, एक लार्ज एक्सप्लोजन, बिग बैंग इसलिए बोलते हैं इसको, बिग बैंग मीन्स ए लार्ज एक्सप्लोजन, ठीक है। एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया इसमें अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो, एंड उस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से मास एक्सपैंड हो गया और बनने लगे गैलेक्सीज ऑलरेडी हमने बोला, दीज आर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड व्हाट वी कॉल एज द क्लाउड्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सी चीज़ें हमने पढ़नी थी, ठीक है। नाउ आपको पता होना चाहिए हर एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम्स होता है, ठीक है। ईच गैलेक्सी कंटेन्स सोलर सिस्टम, तो उसमें आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में एक पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। अपनी अर्थ के बारे में पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। जो हर एक गैलेक्सी है, इन ईच गैलेक्सी प्लैनेटरी सिस्टम्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। इनकी भी अपनी थ्योरीज है, ठीक है। एक फेमस थ्योरी है दैट्स कॉल्ड निब्यूलर हाइपोथेसिस,
ठीक है, निबुलर हाइपोथेसिस, जिससे एक्सप्लेन होता है कि कैसे बनते हैं ये सोलर सिस्टम्स इन ईच गैलेक्सी। ठीक है, तो हमें वो डिस्कस नहीं करनी है, बस मैं बोलूँगा आपको, कभी बोलेंगे प्लानिटरी सिस्टम्स की फॉर्मेशन किस हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन होती है, किस थ्योरी से एक्सप्लेन होती है, तो दैट इज़ द निबुलर हाइपोथेसिस, उससे प्लानिटरी सिस्टम्स की फॉर्मेशन एक्सप्लेन होती है इन ईच गैलेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निबुलर हाइपोथेसिस को नहीं डिस्कस करना है, यहाँ पर बस बोलना है कि हर एक गैलेक्सी में कैसे बनते हैं प्लानिटरी सिस्टम। तो प्लानिटरी सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय निबुलर हाइपोथेसिस, विच यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, आवर प्लानिटरी सिस्टम यानी सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये कहाँ बना था? इट वाज फॉर्मड इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये तो बन गया हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में, इट वाज फॉर्मड इन मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो इसका आपको टाइम पीरियड पूछा जाता है कभी, तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट वाज फॉर्मड इन मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 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 you'll always remember 15 billion years ago. No, sorry, about 4.5 billion years ago. Sorry, about 4.5 billion years ago. ठीक है, तो what do I mean by b by a? b by means billion years ago. फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, billion years ago, and billion कितना होता है? billion means 10⁻⁹। ठीक है, तो ये सारे हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये हमें बस थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बिकॉज ये सारा कंसेप्ट जो है ना, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस क्या किया, हमने कुछ बेसिक टर्म में डिस्कस की थी। हमने बोला था कॉस्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मॉस मीन्स यूनिवर्स, universe is the cluster of galaxies if we look at it from the broad perspective, and galaxies, they are just a combination of solar system, these planetary systems, clouds of gases and dust. Our galaxy is Milky Way galaxy, and our system is solar system, and that system originated about 4.5 billion years ago. Again, it is written here. And origin of universe, cosmogenesis, which we can also say, it was explained by Big Bang theory. That Big Bang theory was given by Abel Lamatier, and that states that the entire mass of universe जो था, that was first in the form of a single entity. That single entity is called as singularity, infinite mass entity और infinite density entity भी इसको कहते हैं। ठीक है, एंड ये सिंगुलैरिटी जो है, इसमें एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया 20 बिलियन ईयर्स एगो, एंड उससे एक्सपेंशन हो गया मास का और गैलेक्सीज बनने लगे। ठीक है, और हर एक गैलेक्सी में प्लानिटरी सिस्टम्स बनने थे। दैट इज एक्सप्लेन बाय निबुलर हाइपोथेसिस। हमारा सोलर सिस्टम जो है, इट वाज फॉर्मड इन मिल्की वे गैलेक्सी, एंड इट वाज फॉर्मड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब हमें एक्चुअली ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करना है ना। एक बात आप समझ लो, लाइफ जो है ना, हम खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, तो हमें कहाँ पता है हमारा एग्जैक्ट ऑरिजिन? नो वन नोज द एग्जैक्ट ऑरिजिन ऑफ लाइफ। नो वन नोज 100% एग्जैक्ट ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो दिस फैक्ट शुड बी क्लियर कि ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, बिकॉज हम खुद लाइफ को रिप्रेजेंट करें, हमने तो नहीं पता है हम कैसे ऑरिजिन हुई, ये तो कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, हम तो सभी व्हाट वी कॉल एज इमॉर्टल्स है। ठीक है, तो जो भी इंसान है वो मॉर्टल्स है, किसी ने नहीं देखा कि पहली फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे वो बनी थी। ठीक है, सो नो वन एग्जैक्टली नोज। नाउ व्हाट इज डन, वेरियस साइंटिस्ट्स पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज। ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, ये दूसरा साइंटिस्ट है, ठीक है, हाँ, ये तीसरा साइंटिस्ट है। ठीक है, ये तीनों स्टडी कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग। ठीक है, एंड दिस शोज इट पुट्स फॉरवर्ड इट्स व्यू 1। ठीक है, ये भी अपना एक व्यू पुट फॉरवर्ड करेगा, व्यू 2। ठीक है, ये भी अपना एक नज़रिया पुट फॉरवर्ड करेगा, व्यू 3। मुझे लगता है ऐसे हुआ है। ठीक है, देन अदर्स जो यहाँ पे जमा है बाकी सारे। ठीक है, तो ये सारे बाकी ये काम नहीं कर रहे, ये बैठे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है, ये इनके व्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, ये व्यू देख रहे हैं, तो ये इसका व्यू, ये सभी इसके व्यूज़ भी देख रहे हैं, इसके व्यूज़ भी देख रहे हैं, इसके व्यूज़ भी देख रहे हैं। ठीक है, इनको कोई भी फ्लॉ लगा, इफ़ देर इज़ एनी ड्रॉबैक और फ्लॉ, तो दे रिजेक्ट हिज व्यू, बोलते नहीं, तुम्हारा व्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके व्यू में कोई फ्लॉ लगा, ठीक है, तो हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी में कोई फ्लॉ नहीं लगा, मतलब किसी को हम साइंटिफिकली डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका व्यू एक्सेप्ट किया जाता है, its view is accepted, and until कोई फ्लॉ प्रूव
इसको ना आ जाए तब तक यही चलता है व्यू, ठीक है। तो शॉर्ट में हमें करना क्या है, हमें यही व्यूज़ पढ़ना है जिनको हम थ्योरीज बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। और हमें देखने हैं कुछ पहले से ही स्टार्ट करना है, एंशियंट पीरियड से ही, ठीक है। कौन कौन से व्यूज़ डिफरेंट साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किए थे, उनमें से फिर कौन कौन से रिजेक्ट हुए, और आज कौन सा व्यू चल रहा है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। कौन सा व्यू एक्सेप्टेड व्यू है, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो आज का व्यू चल रहा है दैट हैज़ एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑल्सो, ठीक है। उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर एग्जैक्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वेरियस थ्योरीज है, ठीक है। तो देर आर वेरियस थ्योरीज, ठीक है, जिनमें से हम कुछ थ्योरीज अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी नंबर 1, तो नंबर 1 थ्योरी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। सो दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। किसी भी थ्योरी के बारे में हमने 3 चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये थ्योरी दी किसने, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, ये थ्योरी दी किसने, ठीक है। नंबर 2 चीज़, ये थ्योरी, क्योंकि ये कुछ थ्योरी जो रिजेक्टेड थ्योरीज है ना, उनके बारे में हम अपना डिस्कशन एग्जैक्ट रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा चीज़ होगा कि ये थ्योरी जो है ये कहती व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, या व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। थ्योरी क्या रही थी वो अबाउट द ऑरिजिन, ठीक है। एंड अगर ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर इस थ्योरी का ड्रॉबैक करना है। तो 3 थिंग्स अबाउट ईच थ्योरी, 3 चीज़ें हमें किसी भी थ्योरी के बारे में याद रखनी है, ठीक है, जो भी यहाँ पे थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ द, ये थ्योरी जो है ना ये दी किसने, ठीक है, ये थ्योरी दी किसने। सो फर्स्ट थिंग इज इस थ्योरी का ओरिजिन पॉइनियर कौन सा है, दी किसने ये थ्योरी, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या है। एंड नंबर थर्ड इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी इफ देयर इज़ एनी ड्रॉबैक, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरी को डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय फादर सोरेज, ठीक है। सो दिस थ्योरी you always remember it was given by Father Soares. He was a Christian, ठीक है, एक क्रिश्चियन स्कॉलर था, ठीक है। फादर सोरेज क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर था, ठीक है। इसी ने ये साइंस की फील्ड में ये थ्योरी लाई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। और इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या था, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। व्हाट डिड दिस थ्योरी से अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इट सिंपली सेड कि जो लाइफ है इट वाज क्रिएटेड एज सच बाय सुपर नेचुरल पावर कॉल्ड एज गॉड, which Christians called God, and we call that as Allah, ठीक है। and same in the same manner Hindus have Brahma, etc etc, ठीक है। तो simply it is religious theory, it states that life was created as such, its central idea is that life was created as such। जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसे ही सारी स्पीशीज एक साथ क्रिएट की गई थी। लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच by a supernatural power, and that supernatural power is called as God in Christianity, ठीक है। एंड इन अदर रिलीजन्स यू नो द नेम्स, ठीक है। बट हमें बस सेंट्रल, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उतने ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। तो क्या रहा था, क्या ये कह रहा था कि लाइफ को क्रिएट किया एक सुपर नेचुरल पावर ने, ठीक है। दैट सुपर नेचुरल पावर इज़ कॉल्ड एज गॉड, ठीक है। अब क्योंकि मतलब ये रिलीजन को ला रहा है, ठीक है, एंड रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, ठीक है। तो सो देर इज़ the blind faith involved in, and science is not blind faith, ठीक है। तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था इसका, रिलीजियस थ्योरी थी, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। सो अगर आपको बोलेंगे रिजेक्ट क्यों किया गया, या इन अदर वर्ड्स इसका ड्रॉबैक क्या था, व्हाई वाज इट रिजेक्टेड, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक इसका यही था कि इट वाज ए रिलीजियस थ्योरी,
रिलीजियस थ्योरी। एंड रिलीजन का क्या होता है, रिलीजन इज बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, ठीक है। एंड दिस इज साइंस, ठीक है। साइंस नीड्स सम काइंड ऑफ प्रूफ, ठीक है। सो एज देयर इज नो प्रूफ इट वाज सिंपली रिजेक्टेड, ठीक है। बट लिटरेचर में इसको इंक्लूड किया जाता है। अब हमें क्या याद रखना है, हमें बस इतना ख्याल रखना है कभी भी हमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सुने तो अगर हमें मैच द फॉलोइंग हुआ, ठीक है, या नीचे ऑप्शन में चूज़ करना हुआ, ठीक है, तो हम हमेशा फादर सोरेज के बारे में जो है ना इसको ढूंढेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया तो हमें आएगा ही समझ क्योंकि रिलीजियस थ्योरी है, ठीक है। और ड्रॉबैक भी तो पता ही है, तो रिलीजियस थ्योरी है वही इसका ड्रॉबैक भी बन जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। लेट्स गो टू थ्योरी नंबर 2। थ्योरी नंबर 2, ठीक है। थ्योरी नंबर 2 इज थ्योरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज दिस बायोजेनेसिस, ठीक है। Theory of abiogenesis. Abiogenesis, or some people call it spontaneous generation. Spontaneous generation. Spontaneous generation, ठीक है। Spontaneous generation। तो इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। ये थ्योरी क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो अबायोजेनेसिस, अबायो मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, अबायो मीन्स नॉन लिविंग, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। एंड स्पॉन्टेनियस मीन्स बाय इटसेल्फ, ठीक है, खुद ही हो जाना, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्चुअली कहती क्या है, ये कहती है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स अराइज हो गए खुद ही, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ दे से के, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, कुछ इल्यूजन्स के बेसिस पे ये कहते हैं कि खुद ही नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स अराइज होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। सो अगर हमें बोलेंगे कि पॉइनियर इसका कौन था, ये थ्योरी जो है ना, हु गेव इट, ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय, अगर आपको ये पूछा जाएगा कि ये हु गेव दिस थ्योरी, दिस काइंड ऑफ थ्योरी, सो इट वाज गिवन बाय दिस एरिस्टोटल, एम्पिडोक्लस एटसेट्रा। एरिस्टोटल, एम्पिडोक्लस एटसेट्रा। एरिस्टोटल, एम्पिडोक्लस वगैरह इसमें बिलीव कर रहे थे, इन्होंने ही दी थी ये थ्योरी, ठीक है। एंड व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस थ्योरी, इट स्टेटेड दैट सेंट्रल आइडिया अगर आपसे पूछेंगे, इट स्टेट दैट लाइफ arose from non-living things spontaneously, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनका बिलीव था कि जो मड है, मड गिव्स राइज टू फ्रॉग्स, ठीक है। इनका बिलीव था कि जो वीट ग्रेन्स है दे गिव राइज टू माइस, ठीक है। तो ये इनका बिलीव था, ठीक है, कि मड कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग्स में, वीट कन्वर्ट हो जाता है माइस में, ठीक है। ऐसा ही इनका बिलीव था कि नॉन लिविंग थिंग्स से स्पॉन्टेनियसली लिविंग थिंग्स बन जाते हैं, ठीक है। बट इनका इसका भी कोई प्रूफ नहीं था, साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट किया गया, ठीक है। एंड बिकॉज इसको कंट्राडिक्टरी प्रूफ दिया, ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिसमें लुइस पास्चर भी था, ठीक है, उन्होंने इसका कंट्राडिक्टरी प्रूफ दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है, नो सच थिंग इज ऑब्जर्व्ड, इज ऑब्जर्व्ड, नो सच थिंग इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंटली ये ऐसी चीज़ें करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या मड वगैरह को रखते हैं, तो हम ऐसा कोई भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है। एंड ऑल्सो इट वाज डिस्प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने इसको कंट्राडिक्टरी या रिटोरिकली इसको डिस्प्रूव किया था, ठीक है। तो इट वाज ऑल्सो डिस्प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ 3 scientists. It was also disproved by experiments of 3 scientists, ठीक है।
3 साइंटिस्ट्स थे हमारे पास जिनके एक्सपेरिमेंट्स ने इसको डिस्प्रूव किया, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, आप बस इनका नाम रखो याद पहले, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रांसिस्को रेडी, दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेज़ारो सेपेलेंजी या सेपेलेंजी, आप बस याद रखो। एंड तीसरा तो आपको पता ही है, दैट वाज लुइस पास्चर। तो इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स ने इसको डिस्प्रूव किया। अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, इन्होंने क्या किया। चलिए अब देखते, देखो इन तीनों ने क्या किया। सबसे इनमें से सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो है ना वो लुइस पास्चर का, ऑल्दो इनका तीनों का एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस इनमें से एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर का था, ठीक है। लुइस पास्चर जो है, इसके एक्सपेरिमेंट को हम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट को हम, हिज एक्सपेरिमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये आपसे कभी पूछा जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ठीक है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर ने किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने एक ब्रॉथ लिया, ठीक है। ही टुक ए बॉइल्ड मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड शुगर, ही टुक ए बॉइल्ड मिक्सचर ऑफ yeast and sugar, yeast and sugar, ठीक है। अब बॉयलर जब इसने लिए, इसका मतलब इट कंटेन्ड, इट वाज स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल मतलब देयर वाज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर वर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा था। ये बॉइलिंग से मदद था, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, ये इसने दो इस जार्स में लिया, ठीक है, 2 फ्लास्क्स में लिया। ही टुक इट इनटू 2 फ्लास्क्स, 2 फ्लास्क्स में इसने लिया, ठीक है। एक फ्लास्क थी जिसका नेक कर्व्ड था, ऐसे कर्व्ड नेक, इसी कर्व्ड नेक को हम स्वान नेक भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी फ्लास्क थी जिसका नेक स्ट्रेट था, ठीक है। दोनों में इसने मिक्सचर ले लिया, किसका, इस यीस्ट प्लस शुगर मिक्सचर ले लिया, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, अब इसने इसको ऐसे ही रखा, ठीक है। ही टू केप्ट इट लाइक दिस फॉर सम टाइम, ठीक है। तो फॉर सम डेज ही लेफ्ट द मिक्सचर लाइक दिस, फॉर सम डेज ही लेफ्ट द मिक्सचर लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही इसने मिक्सचर को रख दिया ऐसे ही, ठीक है। तो फिर इसने क्या देखा, आफ्टर सम डेज ही ऑब्जर्व दैट कि ये वाला था, दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये जो अनओपन जार था जिसका ओपन था, जिसका स्ट्रेट नेक था, ठीक है, इसमें फ्लाइज डेवलप हो गए, ठीक है। सो आफ्टर सम डेज फ्लाइज डेवलप्ड ऑन ओपन जार, ठीक है। और जो स्वान नेक वाला जार था, इस पर कोई नो फ्लाइज डेवलप्ड, उस पर कोई भी फ्लाइज डेवलप नहीं हुए, ठीक है, नो फ्लाइज डेवलप, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ कि अगर सोर्स ऑफ द फ्लाइज ये मिक्सचर होता, ये यीस्ट शुगर मिक्सचर होता, तो दोनों पे डेवलप होते, ठीक है, यहाँ से भी डेवलप होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ डेवलप हुए ओपन जार में। इसका मतलब है बाहर से फ्लाइज आए, उन्होंने ब्रीड किया है इस पर, ठीक है। यानी जो शुगर मिक्सचर है, ये जो अबायोटिक मिक्सचर है, ये सोर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फ्लाइज का। फ्लाइज बाहर से आ रहे हैं एंड वो फिर वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, वो खुद एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग दिस मिक्सचर, नॉट बट दिस मिक्सचर डजंट गिव ओरिजिन, ठीक है। सो इट प्रूव्ड दैट, इससे क्या प्रूव हो गया, इट प्रूव्ड दैट जो मिक्सचर था ना, मिक्सचर वाजंट सोर्स ऑफ फ्लाइज, मिक्सचर वाजंट द सोर्स ऑफ फ्लाइज, ठीक है। तो देयर बाय एबायोटिक थ्योरी को, यानी जो नॉन लिविंग मिक्सचर है वो ओरिजिन देता है लाइफ को, वो डिस्प्रूव हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को फिर फॉर्मुलेट किया, यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, इसी चीज़ को फिर फॉर्मुलेट किया हग्सली ने, हग्सली एंड हग्सली 2 साइंटिस्ट थे, हार्वे और हग्सली, ठीक है। उन्होंने इसको फिर किया काम, उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया एज बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ लाइफ, जिनमें उसने कहा कि लाइफ जो है, लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब जो नॉन लिविंग है वो लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस
ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस वाज called as theory of biogenesis. This was formulated as theory of biogenesis by Harvey and Huxley. हार्वी एंड हक्सली, इन दोनों ने फिर इसको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के तौर पे मतलब पेश किया, ठीक है। स्पेलेंजी और जो रेडी था उन्होंने भी सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन स्वाननेक उन्होंने इसने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सीधे जार कवर किया था, ठीक है। जो स्पेलेंजी ने और ये थे, उन्होंने 2 बीकर्स लिए थे, एक पे जार रखा था, एक पे जार नहीं रखा था, बस यही फ़र्क था। और जो रेडी था उसने फ्लैश यूज़ किया था, ठीक है, और उसने वेजिटेबल प्लस फ्लैश यूज़ किया था स्पेलेंजी ने, ठीक है। वो छोड़ो आप, तो ऑब्जर्वेशन इनकी सेम थी। तो ये थी थ्योरी नंबर 2। नाउ लेट्स गो टू थ्योरी नंबर 3। थ्योरी नंबर 3 एंड थ्योरी नंबर 3 इज़ थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया, और व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज कॉस्मोजोइक थ्योरी, what we also call as cosmozoic theory, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मी या कॉस्मोजोइक थ्योरी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसके सबसे पहली बात किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय ठीक है, एरिहिनस एंड रिचर, ठीक है, रिचर, ठीक है। जो कॉस्मोजोइक टर्म है, ठीक है, वो यूज़ की थी एरिहिनस ने, ठीक है, और जो रिचर है उसने पैनस्पर्मिया टर्म यूज़ की थी, ठीक है। एरिहिनस और रिचर इन दोनों ने दिया था, ठीक है। और इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या है? व्हाट डज दिस थ्योरी स्टेट? इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई यहाँ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। सो व्हाट डज दिस थ्योरी स्टेट? इट स्टेट्स दैट लाइफ came from outer space to earth in the form of spores, जिन स्पोर्स को पैनस्पर्म्स भी कहते हैं, पैनस्पर्म्स, ठीक है। तो ये इनका बिलीव था। लेकिन आउटर स्पेस में हम गए, आउटर स्पेस में हमें कहीं भी कोई भी लाइफ का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक, सीधा ड्रॉबैक था कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, नो एविडेंस ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस में कोई भी एविडेंस नहीं है लाइफ का, हमने आउटर स्पेस एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो वो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और व्हाट वी कॉल एज कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। तो उसके बाद और एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है, जो जॉर्ज क्यूवियर ने दी है, ठीक है। तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी नंबर 4, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म भी कहते हैं, या इसको और भी कुछ नामों से हम जानते हैं, ठीक है, या सडन क्रिएशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज सडन क्रिएशन थ्योरी, सडन क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। तो शॉर्ट में हम मेंशन करेंगे कि ये किसने दी थी। इट वाज गिवन बाय जॉर्ज क्यूवियर एक साइंटिस्ट था, ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। तो इसी ने ये दिया था। और इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या था? इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया था कि ये थोड़ा सा डायनेमिक्स ऑफ लाइफ एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। ये कहती थी कि लाइफ जो है ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज होती है, ठीक है। लेकिन जब ये अराइज होती है, इट रीचेस टू इट्स पीक, ठीक है। पहले इस पे ये पीक पे आती है, फिर क्या होता है, फिर एक कैटास्ट्रोफ आता है, फिर उसको पूरी तरह से इरोड कर देता है पूरी लाइफ को, ठीक है। फिर से ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इनऑर्गेनिक मैटर से अराइज होती है, एंड ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, ठीक है, ठीक है। इट
it states that life on earth undergoes साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग होती है लाइफ की, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इट अराइजेज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, देन इट रीच इट्स पीक, देन ये अपना पीक अचीव करते हैं जहाँ पे फ्लोरा फाना जो है उनका नंबर मैक्सिमम होता है। देन व्हाट हैपन्स, देन इट इज़, देन मास एक्सटिंक्शन ऑकर्स, देन मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, ऑकर्स, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है जिसको हम कैटास्ट्रोफ बोलते हैं, ठीक है, कैटास्ट्रोफ बोलते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, अगेन इट अराइजेज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, अगेन इट रीचेज पीक एंड इट दिस कीप्स गोइंग ऑन, ठीक है, ये इसका ये था। ठीक, अब इसको भी क्यों रिजेक्ट किया गया, इसका भी ड्रॉबैक क्या है, इसका भी यही ड्रॉबैक है कि मतलब ये इन द फर्स्ट प्लेस कैसे अराइज हुई लाइफ वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते एंड हमारे पास हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मास एक्सटिंक्शन हुई, ठीक है। देयर इज़ नो प्रिडिक्शन और द विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, या ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की है इस फैक्ट की, ठीक है, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक ये है कि डजेंट एक्सप्लेन क्लियरली द ओरिजिन, ठीक है। एंड दूसरा ड्रॉबैक ये है कि देर इज़ नो ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड फैक्ट रिगार्डिंग मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो कोई ऑब्जर्व्ड फैक्ट हमारे पास नहीं है मास एक्सटिंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसलिए ये थ्योरी जो है ना इसको भी रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, आप बस इसको याद रखो, ये दी थी जॉर्ज क्यूवियर ने, ठीक है। अब लास्ट थ्योरी हमारे पास दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, विजडम एक्सेप्टेड थ्योरी गिवन बाय ओपेनहाइमर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, अभी तक बस इसमें ये थ्योरीज याद रखनी है, ठीक है। नेट में मैं बताऊँगा आपको क्या याद रखना है, आपको बोलेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो किसने दी, आप बोलोगे फादर सोरेस, आपको बोलेंगे थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस किसने दी, आप बोलोगे एनाक्सिमेंटर एरिस्टोटल एम्पिडोक्लस, ठीक है। आपको बोलेंगे थ्योरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज क्या बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म किसने दी, आप बोलोगे जॉर्ज क्यूवियर। आपको बोलेंगे थ्योरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी किसने दी, आप बोलोगे एरिहिनस एंड वॉन रिचर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे इसमें, एंड ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। रेस्ट जो मेन कोर टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। कीप स्माइलिंग।